Just a minute. Once the recording will start, we will start the lecture. Yes. Now, in my last lecture, we have discussed about the treatment of the dividend. Okay. So in dividend, what we have discussed is, suppose if you receive the dividend, either if you receive the dividend from Indian company or foreign company, whosoever it is, the dividend. Now, if you are receiving the dividend, it is taxable. Okay. Now, suppose if you receive the dividend, okay, out of the accumulated profit under section 2 subsection 22E we have discussed that company इसमें से कोई भी फॉर्म में आपको डिविडेंड दे रही, मतलब एक्चुअल डिविडेंड इज नॉट गिवन बाय द कंपनी, but see the company is distributing the asset to the equity shareholder out of the accumulated profit. It is treated as the income, it is treated as a dividend in the hands of shareholder, and it is taxable. Then we have discussed about the, suppose company is giving you a debenture or certificate or any other thing. Okay. uh, like suppose debenture deposit certificate is given out of the accumulated profit. Okay. Then also it is treated as a deemed dividend, it is taxable, that we have discussed. Okay. Now same way we have discussed that, see, suppose the company is giving the bonus of preference share. Equity share ka bonus is not a dividend, but company is giving the bonus of preference shares. Okay. Then it is treated as a deemed dividend and it is taxable in the hands of shareholder. सेम वे अगर कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपनी असेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, एज ए शेयर होल्डर इफ यू हैव रिसीव्ड सच असेट, then it is treated as your income. Or suppose the company is going for a reduction of capital, and at the time of reduction of capital, suppose company has distributed anything to the shareholder. And as a shareholder, if you have received, it is treated as income. And lastly, we have discussed that agar closely held company in which the shareholder is holding more than 10% share, and if out of the accumulated profit, if the loan is given by the company to the shareholder, then also it is treated as a deemed dividend and it is taxable. And then we have discussed all these other points in last lecture. I'm not repeating all this. You have a recording. If you are unable to understand, you can go and read, watch that recording. We'll continue with the other point. So lastly, now we are going with the illustration number 1. Am I audible? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Okay. So let us start. See, here one example is given that Z Limited is a company in which public is not substantially interested. देखो जो I have teach you that कौन सी कंपनी में अगर कंपनी आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेयर होल्डर को लोन देता है तो इट इज ट्रीटेड एज ए डीम्ड डिविडेंड. इट इज ट्रीटेड एज ए डीम्ड डिविडेंड इफ द लोन इज गिवन बाय द क्लोजली हेल्ड कंपनी. देखो क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब होता है द कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है, लिस्टेड कंपनी होती है, उसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड ऐसा कहा जाता है. और क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब ये होता है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, फ्यू ग्रुप ऑफ पर्सन इज कम टुगेदर एंड दे हैव फॉर्म द कंपनी. ओके. तो देखो यहाँ क्लोजली हेल्ड कंपनी के लिए दो वर्ड यूज होते हैं, either closely held or company in which the public is not substantially interested is also known as closely held company. Okay. तो यहाँ पे क्या लिखा है, Z Limited is a company in which the public is not substantially interested, मतलब this is a closely held company. Okay. अब ये क्लोजली होल्ड कंपनी में हो क्या रहा है, तो K is a shareholder of the company holding 15% of the shares, मतलब he is a substantial shareholder. is a substantial shareholder, 10% से ज्यादा उसके पास होल्डिंग है. Okay. Now accumulated profit of the company as on 31st March 2022 was 10 lakh. अभी कंपनी के पास 10 लाख रुपए पिछले सालों का प्रॉफिट इकट्ठा होके बढ़ा है. द कंपनी लैंड, देखो कंपनी इसमें से 2 लाख रुपया के को क्या करती है, लैंड मतलब लोन देती है टू के बाय अकाउंट पे ड्राफ्ट एज ऑन 1st October 2022, and loan was not connected with the business of the company, and K repaid the loan to the company by account pay check as on 31st March 2023, examined the effect of the borrowed and repayment of the loan by the K on computation of his total income for the assessment year 2023-24. देखो यहाँ पे क्या किया है कि कंपनी जो क्लोजली हेल्ड है, नाउ इन दिस क्लोजली हेल्ड कंपनी मिस्टर के इज अ सब्सटेंशियल शेयर होल्डर, 10% से ज्यादा होल्डिंग है, और
उसको उस कंपनी के पास 10 लाख रुपया प्रॉफिट पड़ा था, वो प्रॉफिट में से कंपनी ने एक शेयर होल्डर को मिस्टर के को 2 लाख रुपए की लोन, वो भी अकाउंट पे ही चेक से दी। और देखो मिस्टर के ने क्या किया, जैसे ईयर खत्म होता है उससे पहले उसको रीपे भी कर दिया। नाउ व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट? देखो एक चीज याद रखो, उसने रीपे किया है या नहीं किया ऐसा मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। But you should remember, once the loan is given by the company to the substantial shareholder, okay, then it is treated as an income and it is taxable in the hands of other sources. Okay, मतलब मिस्टर एक्स के लिए इनकम टैक्सेबल होगी, भले उसने रीपे कर दिया, बट सी फॉर दिस फिगर यू कैन सी 1/10/2022 થી લઈને 31/3/2023 3-4 મહિના પૈસા આની પાસે રહ્યા, પછી એને પાછા આપ્યા, इतना पैसा ने वापरा, तो इट इज ट्रीटेड एज हिज इनकम और वो टैक्सेबल होगा और ही हैज टू पे द टैक्स। देखो अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 22E, पेमेंट ऑफ एनी सम बाय द कंपनी in which public are not substantially interested by way of advance or loan to the extent company possesses the accumulated profit to the shareholder, okay, who is a beneficial owner of the share not less than 10% of voting power। देखो यहाँ ये अपने गिवन केस में उसके पास कितना वोटिंग पावर है, ही इज हैविंग द 15% वोटिंग पावर, और मतलब 10% से ज्यादा है, ओके। तो सेल बी डीम्ड टू बी अ डिविडेंड, मतलब वो डिविडेंड ही कहा जाएगा। 2 लाख की लोन जो कंपनी ने शेयर होल्डर को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दी, दिस ट्रीटेड एज अ इनकम इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, एंड इन द गिवन केस मिस्टर के इज अ बेनिफिशियल ओनर of 15% voting power, therefore amount of 2 lakhs so paid to him shall be treated as a deemed dividend। इसको हम deemed dividend ही गिनेंगे, and whatever deemed dividend paid to him, okay, by the company to him, okay, so that will be taxable, उसके लिए वो dividend taxable हो जाएगा। This deemed dividend paid during the year is a deemed dividend, and even if it is repaid during the year, you can refer, देखो भले उसने वापिस दे दिया है, but still it is treated as income and it will be taxable in the hands of Mr. K, okay, तो Mr. K is liable to pay the tax, okay, it is treated as a deemed dividend। तो सेम लाइन पे एक दूसरा एग्जांपल दिया है, लेट अस रिफर। समझ में आए सब में? किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? हेलो? No, sir. Okay, let us go ahead with the next point, next illustration. Mr. Jugal took a loan of rupees 2,20,000 from the company, in which again the public is not substantially interested। मतलब this company is a closely held company, ये company closely held company है, okay, and he holds 25% of equity shares, मतलब he is also holding the more than 10% shares। So on the date of loan, when paying the premium, the accumulated profit was rupees 1,80,000। देखो अभी कंपनी के पास कितना पैसा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से पड़ा है? ओनली 1,80,000। Now how much loan is given to the given by the company to Mr. Jugal? 2,20,000। देखो मैंने क्या बताया, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने तक ही इनकम कही जाएगी। एक्यूमुलेटेड इनकम से ज्यादा कुछ दिया तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। ओके, मतलब कंपनी के पास 1,80,000 ही प्रॉफिट पड़ा है और उसने 2,20,000 का लोन दिया, तो व्हाट विल बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड डिविडेंड? ओनली अमाउंट अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। तो यहाँ पे इन द गिवन केस द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज 1,80,000। सो 1,80,000 इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, सो ओनली दैट अमाउंट इज ट्रीटेड एज इनकम। नाउ देखो आगे हम देखते हैं क्या लिखा गया है। Subsequently in the same year, company has declared the dividend। अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया डिविडेंड, and on his shareholding Mr. Jugal was entitled to receive the dividend of rupees 35,000 against the amount of the loan। ओके, मतलब उसने 2,20,000 का लोन दिया था उसके, और देखो कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया और मिस्टर जुगल को कितना मिलने वाला था? 35,000। कंप्यूट द अमाउंट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ मिस्टर जुगल। देखो मिस्टर जुगल के लिए कितना डीम्ड डिविडेंड कहा जाएगा? जितना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही। तो 1,80,000 इज इनकम, ठीक है। तो 1 लाख, भले 2,20,000 का लोन दिया है लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है? ओनली 1,80,000। ओके, लेट अस रिफर। लाइक सपोज कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड, कंपनी ने लोन कितने का दिया? हाउ मच अमाउंट लोन इज गिवन बाय द कंपनी टू मिस्टर जुगल?
See, the company has given the loan of rupees 2,20,000 टू मिस्टर जुगल, ठीक है। बट सी कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना पड़ा है? कंपनी इज हैविंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट of rupees only 1,80,000. So to the extent the company is giving the dividend out of the accumulated profit will be treated as income. So the total 2,20,000 is not treated as income, but what will be treated as a deemed dividend? The deemed dividend will be treated as only 1,80,000. Okay, so this will be the deemed dividend. Okay, तो मिस्टर जुगल के लिए कितना टैक्सेबल होगा? 1,80,000. लेकिन देखो 1,80,000 में से अभी कंपनी क्या करती है? The company has declared the dividend. अभी मिस्टर जुगल का राइट बनता है कि कंपनी के पास से उसको 35,000 तो लेना ही लेना है. ओके, तो 35,000 is adjusted. Okay, so 35,000 is adjusted against the dividend. Okay, now what will be the taxable amount in the hands of Mr. Jugal? Let us refer. So in this case, देखो, amount of loan is 2,20,000, but accumulated profit is 1,80,000. Hence, deemed dividend shall be how much? Only 1,80,000. So only this 1,80,000 will be the deemed dividend. Now you can see the accumulated actual dividend is 35,000 is set off against the loan. Hence, such dividend shall not be treated as dividend, and Mr. Jugal do not have to pay the tax on 35,000. मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है? मिस्टर जुगल ने तो अभी 1,80,000 पे टैक्स भर दिया। सपोज मिस्टर जुगल ने मतलब मिस्टर जुगल के लिए 1,80,000 डीम डिविडेंड है, और दिस डीम डिविडेंड विल बी टैक्सेबल और विल बी इंक्लूडेड इन हिज इनकम. नाउ अगेन 35,000 डिविडेंड ही हैज टू रिसीव, लेकिन वो उसको मिलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कंपनी की लोन पड़ी है, उसके सामने एडजस्ट कर दिया. So Mr. Jugal has already paid the tax on this 1,80,000. Now again he is eligible to receive the 35,000. बट 35,000 उसको मिलता नहीं, उसको ये 1,80 के सामने एडजस्ट कर रहा है, तो ये 35,000 उसके लिए क्या हो जाएगा? इट विल नॉट बी टैक्सेबल. ये टैक्सेबल नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी दिस इज इंक्लूडेड इन हिज इनकम. नाउ द 35,000 which he has received, that is get adjusted against the 1,80,000 that is receivable by the company from Mr. Jugal. So that is get adjusted. So this 35,000 will not be taxable. क्यों taxable नहीं होगा? Because already ये 1,80 पे उसको उसने टैक्स भर दिया. Okay, so we have discussed the concept of deemed dividend. These all are treated. देखो डिविडेंड मिलता है, the dividend is always taxable. Okay, or if you receive in any form the deemed dividend, the deemed dividend is also taxable. Now see another point. देखो what we are discussing the various income which are taxable under the head income from other sources. So out of that I have discussed with you the first point, that is the deemed dividend. Now the next point is, because this point you all know very well, you have learned in your second year BCom, in the PGBP also I have teach you. Okay, so suppose if you earn the casual income, देखो ये casual income है, don't consider it as a speculative income, है ना? Speculative के साथ mix मत करो. Speculative income I have teach you when you deal in the derivatives, when you deal in the intraday stock, it is the speculative income. But this is the casual income. Casual income is always, देखो casual income में ये point common होता है. When the income is arise by way of winning, देखो ये word आता है कोई भी income में, winning. Okay, then it is treated as a casual income. मतलब वो रोज बरोज income नहीं होती, कभी कभार हो जाती है casual. Okay, that is called the casual income. So suppose if you are having the income by way of winning from lotteries, okay, by way of winning from crossword puzzles, आपको आगे भी पता है कि races including horse race, you can see winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse race, gambling or betting of any form, or card games or show or any entertainment program on television or electronic mode. Okay, तो ये इसमें से कोई भी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम आता है, लाइक कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रोग्राम में से भी आप विन करते हो, या विनिंग फ्रॉम लॉटरी होता है, या क्रॉसवर्ड पजल होता है, रेसिस होती है, इसके अंदर आप आपके पैसे लगाते हो. ओके, या तो फिर आपका कोई नॉलेज लगाते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट फ्रॉम दैट यू विन एंड यू अर्न द इनकम. नाउ सी whether it is taxable or not. So one thing is very much sure,
that it is taxable, और वो taxable होगा तो कौन से हेड में होगा? It will be always taxable under the head income from other sources. वो income from other sources में ही, income from other sources में ही taxable होगा, ठीक है? It will be taxable under the head income from other sources. Okay, so see, it will be taxable under the head income from other sources. तो अदर सोर्सेस वाले हेड में वो टैक्सेबल होगा. तो दिस इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, तो ये हेड में वो टैक्सेबल होगा, ठीक है? इट विल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड. अंडर दिस हेड मींस व्हाट? इट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. नाउ सी, सो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर. Let's see, these income are always taxable under the head income from other sources. The income from other sources में taxable होगा. Now see, you should remember certain points in relation to this. You have come to get the idea. Let's see, if I earn the income by way of winning from lotteries, okay, suppose if the income is arise from winning from lotteries, crossword puzzle, races, including horse race, whatever it is, okay, or if any entertainment program on television, see, whatever income you are earning by way of winning, इसको हम कहते हैं कैजुअल इनकम. Okay, so casual income is always taxable under the head income from other sources. ये तो हमें समझ में आ गया कि IFOS में ही taxable होगा. It will not be taxable in any other head. But see, when you are making it taxable, we are supposed to keep in our mind certain points. So which points that we are supposed to keep in our mind? Let us understand. The lottery includes the winning from prize award to a person by way of draw lots or chance or in any other manner. तो लॉटरी डज नॉट मीन ओनली लॉटरी टिकट. अगर कोई दूसरा कोई ड्रॉ होता है कोई अलग तरीके से, और कोई दूसरा कोई अरेंजमेंट होता है जिसमें ड्रॉ होता है एंड यू विन, दैट इज ट्रीटेड एज अ लॉटरी. इन कार्ड गेम एंड अदर सॉर्ट इंक्लूड्स गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन द टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब यूट्यूब पे या तो फिर दूसरी कोई इंस्टाग्राम पे, ऐसे में भी कोई प्रोग्राम होता है जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं, यू विन द प्राइजेस. ऑल दीस आर ट्रीटेड एज winning from lottery, crossword puzzle, इसको हम कहेंगे, we call it as a casual income. उसको हम casual income कहेंगे. Okay, now see, we have understood that casual income is taxable under the head income from other sources. But see, here you should remember that, see, exemption oblique deduction, such income shall be fully taxable and no deduction shall be allowed. See, this is a very important point. विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसिस, ये सब की इनकम तो होगी. यहाँ से अगर आपको इनकम अराइज हुई है तो दैट इनकम विल बी ऑलवेज टैक्सेबल. इनकम विल बी ऑलवेज टैक्सेबल, ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है? लेकिन अगर ये इनकम को अर्न करने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, ओके, can you claim any deduction? Answer is no, never. This income is, you should remember, it is fully taxable. Fully taxable मतलब no expense from this income will be allowed as a deduction. For example, suppose I win the lottery of rupees 1 lakh, okay, but see, आज मैं लॉटरी लगाया, लेकिन पिछले 5 साल से मैं लॉटरी टिकट खरीद रहा हूँ और तब जाके आज लगी. तो 5 साल के अंदर मेरे कोई लॉटरी टिकट खरीदने का खर्चा 25,000 रुपया हुआ. कैन आई क्लेम द डिडक्शन फॉर सेम? आंसर इज नो, इट इज फुल्ली टैक्सेबल. यू कैन अंडरलाइन दिस वर्ड, फुल्ली टैक्सेबल, एंड नो डिडक्शन शैल बी अवेलेबल फ्रॉम दिस इनकम. सो दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू रिमेंबर. लेट्स सी, दिस इनकम व्हाटएवर इज अराइज टू अस, ओके, इट इज फुल्ली टैक्सेबल and no deduction is available. Okay, so you should remember कि ये इनकम जो होती है, okay, this is fully taxable और इसमें से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता, ठीक है? तो this income is fully taxable and no deduction is available from this. Just a minute, I have to take the call. हाँ मैडम, बोलो बोलो. हाँ, તમે की સર્ટિફિકેટ મોકલી આપ્યું ને, તમે કીધું એ પ્રમાણે ડિસ્ક્વોલિફિકેશન. હા, એમાં 3 મોકલી આપી મેડમ. હું બહાર છું, મારી ઓફિસમાં કોલ કરશો તમે હરેશભાઈને, એ તમને તરત મોકલી આપશે. સ્કેન કરીને મૂક્યું જ છે, હે ને? હા,
હરેશભાઈનો નંબર લખો. હા 99 251 વાળા પર કોલ કરો ને કે MR3 ભૂલથી મોકલી આપ્યું છે, મને ડિસ્ક્વોલિફિકેશન સર્ટિફિકેટ મોકલો, હે ને? ઓકે ઓકે. सॉरी, व्हाट आई वाज डिस्कसिंग विथ यू. यस, देखो ये इनकम के बारे में एक दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है कि जनरली हम अगर इफ वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल, इन केस ऑफ इंडिविजुअल द इनकम इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. ओके, इनकम इज टैक्सेबल अकॉर्डिंग टू द स्लैब रेट. बट ये इनकम जो होती है उसमें कोई कुछ नहीं, आपकी इनकम हमेशा फ्लैट 30% के रेट से टैक्स लगेगा उस पर. ओके, it will be taxable at the flat rate 30%. फॉर एग्जाम्पल समझ लो कैसे फ्लैट रेट का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल सपोज माई इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर दिस ईयर इज से ₹2 lakh. ओके, माई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज से ₹1 lakh. ओके, और माई विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो आता है दैट इज ₹1,50,000. ओके, अभी आप समझो. और सपोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आई हैव परचेज द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹50,000 एंड दैट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. तो 80C में मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी और भी कुछ मेरे बच्चों की एजुकेशन फीस बढ़ी और वो सबका मुझे 50,000 का 80C में डिडक्शन मिलने वाला. Now this is the situation, and if it is asked to you that you determine the tax liability of this person, तो how you will determine? देखो जनरली हम क्या करते हैं कि भाई 3 हेड का टोटल करते हैं, भाई 2 लाख ने 3 लाख ने 4,50,000, 4,50,000 માંથી 50,000 रुपया 50,000 is the deduction, so 4 lakh is my taxable income and on 4 lakh I will pay the tax. No, ऐसा नहीं करना है. You don't have to do this. Okay, so what you are supposed to do? You are supposed to pay the tax on this 1,50,000 at the flat rate of 30%. ये 1,30,000 है, 1,50,000 उस पे फ्लैट 30% से टैक्स पे करो, और बाकी का ये जो 3 लाख है उसका टोटल करो. तो 3 लाख मतलब 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख इज ए टोटल, और 3 लाख में से मुझे 50,000 मेरा क्रॉस 50,000 में लेस कर देता हूँ, 50,000 में लेस कर देता हूँ. तो अभी बाकी बचा 2,50,000. नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से जाना है, और नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 2,50,000 इज एग्जाम फ्रॉम अप टू 2,50,000 यू डोंट हैव टू पे द टैक्स. ओके, सो यू शुड रिमेंबर कि भाई आपको आपकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है नहीं है, कुछ देखना नहीं है. ओके, व्हाट यू हैव टू डू इफ यू आर हैविंग द इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी, you have to file your return, and on your winning from lotteries you are supposed to pay the tax at the rate flat 30%. winning from lottery cross, समझ में आए? हेलो, यस सर. ओके, ओके बेटा. तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ऑल दिस कैजुअल इनकम्स आर टैक्सेबल एट व्हाट रेट? इट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%. दूसरा हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है? ये वाला पॉइंट, no deduction shall be allowed. This point, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि इट इज फुल्ली टैक्सेबल एंड नो डिडक्शन इज अलाउड. वो इनकम में से आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. दैट इनकम विल बी फुल्ली टैक्सेबल. Now see some other point also that we are supposed to keep in our mind, that if the income of jockey means a person, देखो यहाँ रेसिस भी लिखा है, हॉर्स रेसिस और ये सब, तो जो मतलब हॉर्स रेस जब चलती है उसमें जो घोड़े के ऊपर जो बैठा है उसको हम जॉकी कहेंगे. ओके, तो जो घोड़ा चला रहा है दैट इज अ जॉकी, एंड दैट जॉकी अर्न्स द इनकम. सब देखो जॉकी कोई जुआ नहीं खेल रहा है, तो सिर्फ घोड़ा चला रहा है, और उसको घोड़ा चलाने का कुछ पगार मिलता होगा और उसको कुछ रेम्यूनरेशन मिलता होगा, तो उसके लिए विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस नहीं कहा जाएगा. तो यू शुड रिमेंबर that income of the jockey from the profession is not treated as a winning from horse races. तो सपोज आपको विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस कब कहा जाएगा? अगर कोई घोड़े पे आपने पैसे लगाए और वो घोड़ा जीत गया, नंबर 1 पे आया रेस में, और आपने पैसा कमाया, दैट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम. लेकिन जो घोड़ा चलाने वाला बंदा है उसका तो वो रोज का धंधा है, उसको सैलरी मिलता है घोड़े पे बैठने का, तो वॉट एवर ही अर्न्स दैट इज नॉट ट्रीटेड एज हिज इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम रेसेस. और वो अदर सोर्सेज में नहीं, उसके लिए सैलरी या
दूसरे को हेड में टैक्सेबल होगा, बट नॉट अंडर दिस हेड. सेम वे विनिंग फ्रॉम अ कार रैली. ओके, कार रैली मतलब देखो कोई कार का रेस लगा है, ठीक है, और आप प्रोफेशनल ड्राइवर हो, स्किल, और वो रेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हो. ओके, आप कार पे पैसा नहीं लगाओगे ये कार नंबर 1 पे आएगी. आप क्या करते हो, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द कार रैली एज ए ड्राइवर एंड सी बाय यूजिंग योर स्किल. देखो, विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली इज अ रिटर्न ऑफ द स्किल एंड एफर्ट एंड कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कैजुअल इनकम. मतलब अगर आप कार रैली में पार्टिसिपेट करते हो और आपके पास अच्छी ड्राइविंग स्किल है और उसकी वजह से आप जीतते हो, तो दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ए विनिंग फ्रॉम कार रेस. हाँ, कोई कार पे पैसा लगाया और वो कार जीत गई और उसका आपको कुछ डबल मिला, दैट इज ट्रीटेड एज योर इनकम. देखो, ये आपको पता है कि अगर मैंने लॉटरी एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखी है, दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू इन द इनकम फ्रॉम पीजीबीपी. अगर आपके पास लॉटरी टिकट्स है, ओके, और आप बेचने का धंधा करते हो और कुछ टिकट आपके पास बच जाती है, नहीं बेच पाते और वो टिकट पे आप जीत जाते हो, दैट इज ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम, नॉट अ इनकम फ्रॉम विनिंग. सपोज मेरा ड्रॉ का डेट था, उसके दिन 5 टिकट मेरे पास बची है जो बिकी नहीं है, तो मैं वो टिकट को मुझे भी अपना नसीब आजमाना है, लेकिन इट इज अ इंसिडेंटल टू माय बिजनेस. वो लॉटरी खेलना मेरा धंधा नहीं, मेरे को लॉटरी बेचना मेरा धंधा है. बट सी इफ द विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एन एजेंट और ट्रेडर आउट ऑफ द अनसोल्ड टिकट shall be treated as incidental to business, hence it is taxable under which it is not treated as a casual income and not at the rate 30%, but it is treated as the income from PGBP and will be taxable under the head profit and gains of business and profession. Okay, ये तो आपको मैंने पॉइंट नंबर डी तो बता दिया कि no deduction shall be claimed from the such income even if the expenditure is only and exclusively incurred to earn this income. मतलब सपोज आपने लॉटरी खरीदने के लिए या तो फिर घोड़े की रेस पे लगाने के लिए कोई भी खर्चा किया है, पर वॉट एवर एक्सपेंस यू आर इनकरिंग, दैट एक्सपेंस विल नेवर अलाउड एज ए डिडक्शन. वो एक्सपेंस का आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. यहाँ पे आपको मैंने बता दिया इट इज फुल्ली टैक्सेबल. नॉट ओनली दैट, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि बाकी की जो इनकम है उसमें से 80C और 80U का डिडक्शन मिलता है, यहाँ से तो इसमें से तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा. ये फ्लैट रेट से टैक्सेबल बनेगा. मतलब ये जो इनकम है उस पर आपको कोई भी डिडक्शन 80C to 80U का चैप्टर 6 का डिडक्शन दिए बिना पूरा ये 1,50,000 आपने किया तो उस पर सीधा 30% से टैक्स लगेगा. नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज अवेलेबल फ्रॉम सच इनकम. मतलब ये इनकम में से आपको कोई दूसरा डिडक्शन भी नहीं मिलेगा. So this is called winning from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, जिसको हम एक वर्ड में कह सकते हैं कैजुअल इनकम. तो कैजुअल इनकम के बारे में क्या पॉइंट ध्यान में रखने समझ में आया कि कैजुअल इनकम अगर आपने विन की है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल एट द रेट 30%. नो एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन एंड सम अदर पॉइंट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. वी आर डिस्कसिंग व्हाट that which incomes are taxable under their income from other sources. So we have discussed the deemed dividend, we have discussed the casual income. Now the another point is the interest on securities. So suppose if you have invested the money in the securities, okay, अगर आपके पास पैसे हैं और आपने अगर उसको इन्वेस्ट किया है, मतलब देखो इन्वेस्टमेंट करना आपका धंधा नहीं है, बट आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है और यू हैव इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज नॉट शेयर्स. देखो शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो आपको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. और डिविडेंड की क्या टैक्सेबिलिटी है, दैट आई हैव टीच यू. डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल इवन इफ यू रिसीव द डीम्ड डिविडेंड, एंड डीम्ड डिविडेंड इज आल्सो टैक्सेबल, दैट वी हैव डिस्कस्ड. बट दिस इज इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स. ओके, मतलब you have invested in the debenture, bond, government bond, or any other securities. Okay, or on that if you receive the interest, then interest is always taxable under the head income from other sources. Okay, हाँ, लेकिन सपोज समझ लो आपका धंधा ही क्या इन्वेस्टमेंट करना. सपोज यू आर अ बैंक or you are a banking company or investor, okay, or your main business is to do the investment only, and if you earn the interest, that is treated as your business income, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए आपका बिजनेस है. लेकिन in the given case we will going to discuss about that कि suppose if you are having some extra money and you have invested in the securities and if you received any interest, then whatever interest you are receiving, देखो वो दूसरे कोई हेड में टैक्सेबल नहीं होता, so it is taxable under their income from other sources. So see, let us refer, income by way of interest on securities is chargeable under the head income from other sources.
तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज रिसीव किया है तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा भी लिखा है, इफ सच इनकम इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब वही बिजनेस और प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो ही, मतलब किसी का मेन बिजनेस ही इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए वो ये इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। लेकिन अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो ये इनकम टैक्सेबल होगी प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन में, तो ये इनकम बीजीपीपी में टैक्सेबल होगी। ओके, अदरवाइज वेयर इट इज टैक्सेबल, otherwise normally it is taxable under their income from other sources। Okay, now see, interest on security may be taxed on the receipt basis or on the due basis upon the accounting system adopted by the assessee। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ये चैप्टर चालू किया उस टाइम पे ही मैंने आपको समझा दिया था कि ये पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन सी मेथड असेसी फॉलो करता है उस पर डिपेंड करता है। अगर असेसी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है एंड इफ द इंटरेस्ट इज ड्यू yet it is not received but still it is taxable। why it is still taxable? because it is due, मतलब it is receivable, भले उसको नहीं मिला है but it will be taxable because he is following the mercantile system। and suppose if you follow the cash system then when interest is taxable, interest will be taxable only if you have received। अगर रिसीव नहीं करते तब तक टैक्सेबल नहीं होता, कब? when it is a cash system is followed by you। okay, तो वही चीज यहाँ बताई गई कि if assessee follows the cash system of accounting, interest is taxable on receipt basis, otherwise it shall be taxable on due basis। अगर आपने कैश बेसिस फॉलो करते हो कैश सिस्टम तो वो कैश बेसिस रिसीप्ट हुआ है तो ही टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वंस द इंटरेस्ट इज बिकम ड्यू इट विल बिकम टैक्सेबल। If no system of accounting is followed, it is always taxable on due basis। अगर आपको पता ही नहीं चलता असेसी के वो देख के भाई वो कौन सा अकाउंटिंग कर रहा है, ओके, और वो अकाउंटिंग सिस्टम उसके पास कोई अकाउंटिंग है ही नहीं, तो इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। अगर आपको सब में कुछ नहीं दिया है तो इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस। बट इफ इन द एग्जांपल इफ इट इज मेंशन दैट असेसी इज फॉलोइंग द कैश बेस्ड सिस्टम then the interest will be taxable only if it is received during the previous year। okay, okay, now let us discuss the next point। interest on security accrues or become due on the specified date and not on the day to day basis। એટલે દરેક સિક્યુરિટી છે ને એની ડ્યુ ડેટ હોય, હવે ડ્યુ ડેટના દિવસે તમારું ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુ થઈ જશે, તો ઇન્ટરેસ્ટ ઓન સિક્યુરિટીઝ બીકમ ડ્યુ ઓન ધ સ્પેસિફાઈડ ડેઝ એન્ડ નોટ ઓન ધ ડે ટુ ડે બેસિસ। ઓકે, मतलब सपोज आपने जो सपोज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सपोज द ड्यू डेट ऑफ द इंटरेस्ट हैज कम देन इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। तो ड्यू डेट हर एक सिक्योरिटी, कोई डिबेंचर होता है, कोई बॉन्ड होता है, उसमें हर एक में ड्यू डेट होती है। एंड इफ यू रिसीव मतलब इफ दैट ड्यू डेट इज कमिंग इन द प्रीवियस ईयर देन द इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल। ओके, देखो द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट विल बिकम ड्यू इज स्पेसिफाइड बाय द इश्यूइंग कंपनी। कंपनी जब भी डिबेंचर इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है, वो कहती है कि भाई आपको हर महीने की, हर साल की 31 दिसंबर को डिबेंचर का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आपके पास 31 दिसंबर को ये सिक्योरिटी है तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर ये इसको बेच लिया है आपने, किसी और को बेच लिया तो जिसके पास होगी उसको मिलेगा। मतलब ऑन द ड्यू डेट यू शुड होल्ड दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। ओके, और देखो जनरली ये डेट जो होती है क्वार्टरली होती है, ईयरली होती है, 6 मंथली होती है। देखो द डेट ऑन विच द इंटरेस्ट शैल बिकम ड्यू इज स्पेसिफाइड इन बाय द इश्यूइंग कंपनी which may be quarterly basis, half yearly basis, annual basis। For example, if the company issues the 12% debenture and it specified the interest date, okay, interest shall become due on 31st December every year। तो दर वर्ष 31st December तुम्हारे due आने। So on 31st December, okay, if you are holding these particular security then entire period in year interest will become due in your hand and will be taxable। okay, the person is who is registered owner on that day shall be entitled to receive the interest for the full year। मतलब देखो आप कितना पीरियड होल्ड करते हो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे क्या होता है कि सी ऑन दैट डे इफ यू आर होल्डिंग, सपोज समझ लो कंपनी हैज इश्यूड द डिबेंचर इन द ईयर 2018-19 में कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया और कोई मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स ने ये डिबेंचर परचेज किया। अभी ये साल की जब 31 दिसंबर आई ये साल में तो उसको उस पे इंटरेस्ट मिला होगा। फिर 1920 में 31 दिसंबर जब आएगी
तो ये मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके 1920 में। अभी देखो 2021 में सपोज मिस्टर एक्स के पास 31 दिसंबर को डिबेंचर है, तो 2021 में भी मिस्टर एक्स को डिबेंचर मिलेगा। सपोज 21-22 में मिस्टर एक्स के सपोज ये पीरियड चालू होता है 1 अप्रैल 2022 एंड एंड्स ऑन 31 मार्च 2023। तो यहाँ पे भी एक दिसंबर 22 आता है। स्टिल अगर मिस्टर एक्स के पास सिक्योरिटी है तो मिस्टर एक्स विल रिसीव द इंटरेस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर करंट ईयर। नाउ सपोज इन द करंट ईयर, सपोज योर नेम इज मिस्टर वाई, okay, and you are purchasing this debenture from Mr. X as on 1st December 2023। देखो ये हमारा प्रीवियस ईयर है 2022-23। ओके 1 अप्रैल 2022 को ये चालू होता है एंड ऑन 31 मार्च 2023 और सी सॉरी 22-23 ईयर्स। तो सी इट स्टार्ट और सपोज यहाँ दिसंबर 22 आता है, सॉरी सपोज समझ लो यहाँ पे 1 दिसंबर 22 आता है। ओके तो यहाँ 1 दिसंबर 22 यहाँ पे आता है। Now see on this date, suppose if you have purchased this debenture on 1st December 22 को, और देखो उसके बाद देखो आपने एक ही महीना होल्ड किया और 31 दिसंबर को ड्यू डेट आई। ओके देखो इसके आगे का पूरा पीरियड ये 31 मार्च से लेके ये 1 दिसंबर तक ये सिक्योरिटी किसके पास थी? मिस्टर एक्स के पास थी। तो ही हैज होल्ड, बट इसने कितना होल्ड किया वो नहीं देखना है। देखो कंपनी साल का इंटरेस्ट दे रही है, तो लास्ट दिसंबर ने इसने रिसीव किया था, अभी ये दिसंबर को ये सिक्योरिटी आपके पास है। देखो आपने ये सिक्योरिटी ये 1 तारीख को ही खरीदी है, मतलब योर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज ओनली 1 मंथ। अपने 1 महीना ही आपके पास ये सिक्योरिटी रही है, बट स्टिल एज ऑन 31 दिसंबर इफ यू आर होल्डिंग दैट यू विल गेट दी फुल ईयर इंटरेस्ट। मतलब आपको वो देखना नहीं है कि भाई मैं कितनो पीरियड सिक्योरिटी होल्ड करी, ड्यू डेट ना दिवस તમારી પાસે છે तो लास्ट ड्यू डेट से ये ड्यू डेट तक का पूरा इंटरेस्ट आपको मिलेगा। ओके सो व्हाट इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग दैट यू डोंट हैव टू सी, वी हैव टू जस्ट सी दैट भाई इफ द इंटरेस्ट इज रिसीव्ड and on the due date, sorry, if the interest is due and on the due date if you are holding the security you will receive the interest for the entire period। पूरे साल का मतलब अगर कंपनी ईयरली डिक्लेयर करती है तो लास्ट ड्यू डेट से ये ड्यू डेट तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और देखो यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया ना उसका लोग मिसयूज करते हैं। ओके द अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय सर्टेन ट्रांजैक्शन इन द सिक्योरिटी, this is also known as bond washing transaction। देखो it can come in their exam as a short note, they write a short note on the bond washing transaction। what is bond washing transaction? देखो एक सिंपल सा लॉजिक है कि भाई मेरे पास एक सिक्योरिटी है, ठीक है, एक सिक्योरिटी है कि कोई कंपनी के मेरे पास 1 लाख डिबेंचर पड़े हैं, एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपया है, मतलब मैंने कंपनी में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एवरी ईयर। सपोज एज ऑन 31 दिसंबर इंटरेस्ट इज बिकम ड्यू। ओके तो क्या होता है कि हर 31 मार्च को मुझे ये डिबेंचर से 1 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। 10 लाख रुपया मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब हर साल 31 दिसंबर को मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। ओके तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे 31 दिसंबर आने वाली होती है ना उसके 2 दिन पहले मतलब 29 दिसंबर को ये डिबेंचर में अपनी वाइफ के नाम पे, अपने बेटे के नाम पे, किसी के नाम पे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो 29 दिसंबर को ट्रांसफर कर दिया, अभी 31 दिसंबर को कौन ओनर होगा? 31 दिसंबर को वाइफ विल बी द ओनर। तो वाइफ इज ओनर, हु विल रिसीव दिस इंटरेस्ट? तो 1 लाख रुपया उसको मिल गया। सपोज उसकी दूसरी कोई इनकम नहीं है, मतलब यानी टोटल इनकम आखा वर्षनी बीजी कोई ज नहीं, तो ये 1 लाख मिलेगा जो 2,50,000 से कम है, तो सी विल नॉट पे एनी टैक्स ऑन दिस। फिर वापिस मैं डिवेंचर अपने नाम पे कर देता हूँ। फिर जब फिर 29 दिसंबर नेक्स्ट ईयर आएगी तो मैं अगेन आई विल ट्रांसफर इट ऑन द समवन एल्स नेम, कि जिसकी इनकम बहुत कम है उसके नाम पे ट्रांसफर करूंगा तो वो इंटरेस्ट रिसीव कर लेगा। ओके तो इस पे वो टैक्स नहीं पे करेगा क्योंकि उसकी इनकम बहुत कम है, 2,50,000 से कम है, तो ही विल नॉट पे द टैक्स। So as and when the due date comes, you transfer your assets to another securities to another named person. That person will receive the interest and he will give back the interest to you. But see, so this
काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के भाई ये इंटरेस्ट आपके लिए जो टैक्सेबल होता है वो किसी और के लिए टैक्सेबल करवा देना बाय ट्रांसफरिंग ऑन द ड्यू डेट, और दैट इज कॉल्ड ए बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ध्यान में आता है कि ऐसा आप कुछ कर रहे हो तो भले वो इंटरेस्ट किसी और ने को आपने ट्रांसफर किया किसी और को, तो भी इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। भले मैंने डिबेंचर अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया, सन के नाम पे ट्रांसफर किया और उसने इंटरेस्ट रिसीव किया, बट इफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम्स टू नो दैट यू डिड दिस बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, इट इज टैक्सेबल in the hands of the person who has transferred. So let us refer what this bond washing transaction says. Interest on security becomes due on the specified date. मतलब जो डेट होती है उसी दिन को वो ड्यू होता है, and it is treated as an income of the person who owns the securities on the due date. मतलब ड्यू डेट के पास जिसके पास सिक्योरिटी का जो ओनर होता है, he will be treated as owner and he is liable to pay the tax. Therefore, if the owner of any security sells the securities just before the due date से पहले किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो अभी जिसको ट्रांसफर किया that person will become owner and see he will receive the interest. So I can avoid my tax. So he will able to avoid the payment of tax on interest by shifting the burden to other who have no other income or very little income. Suppose घर में कोई ऐसा है कि आपका फ्रेंड है जिसकी बहुत कम इनकम है, उसके नाम पे कर दो तो उसको वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी उसकी इनकम 2,50,000 से कम है, वो इनकम पे टैक्स नहीं भरेगा और मेरा टैक्स बच जाएगा। वापस मैं अपने शेयर्स अपने नाम पे करवाऊंगा डिबेंचर। ओके, तो सेक्शन 194 सबसेक्शन 1 टेक केयर ऑफ सच प्रैक्टिस। ओके, सेक्शन 194 1 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इफ द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी सेल्स और ट्रांसफर द सिक्योरिटीज or buyback or reacquire the same or similar securities, and if he result into transaction that this transaction is, see, result of this transaction is that any interest becoming payable in respect of such securities is receivable by the other person, such interest would be treated as a deemed income of the transferor and not the transferee. Okay, तो यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट भले आपने किसी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया, वाइफ को ट्रांसफर कर दिया और वापिस आपने लिया, अगर वापिस लेते हो वहां पे ही पता चल जाएगा कि यू डिड द बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजेक्शन, एंड वंस यू टेक बैक, see, on that moment that interest will become taxable in your hand, and the provision of section 194 subsection 1 are however not applicable if the owners prove that, कि भाई अगर ओनर प्रूव कर देता है कि भाई मैंने किया लेकिन मेरा कोई इंटेंशन, मतलब सी आई हैव नॉट अवॉइडेड द टैक्स, जो सामने वाला टैक्स भरी दी दो, तो देयर इज नो अवॉइडेंस। और सपोज अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स वाज द एक्सेप्शन, और आप प्रूव कर देते कि भाई एक्सेप्शन से कोई सिस्टम थी નથી મેં કર્યો, કોઈ મારો इंटेंशन નતો, इफ यू कैन प्रूव, और देन इन दैट केस सपोज आप प्रूव कर देते हो, देखो ये सेकंड पॉइंट तो प्रूव करना इम्पॉसिबल है, अगर आपने वापस लिया मतलब इट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, और फिर भी अगर आप प्रूव कर देते हो कि भाई सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया, देयर इज नो इंटेंशन टू अवॉइड द टैक्स, देन द इनकम विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। ठीक है, let us we have discussed the bond washing transactions, still we are discussing which point, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज वाला ये पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा पॉइंट आया कि सपोज इफ यू डू द बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन देन व्हाटएवर इनकम यू रिसीव विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। नाउ सी, आपने दो पॉइंट पढ़े, इसके आगे भी एक पॉइंट पढ़ा विनिंग फ्रॉम लॉटरी, और एक दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि भाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज आल्सो देयर, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ असेसी ऑन द ड्यू बेसिस इफ यू फॉलो द मर्केंटाइल सिस्टम, और इफ यू फॉलो द कैश बेस्ड सिस्टम इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, and see on the due date if you are holding it is taxable। ये सब बातें हमने पढ़ी, लेकिन ये दोनों पॉइंट में, विनिंग फ्रॉम लॉटरी वाले पॉइंट में और ये अपना जो इंटरेस्ट ऑफ इनकम है, ये दोनों पॉइंट में ये एक पॉइंट कॉमन है, दिस इज अ कॉमन पॉइंट दैट इज कॉल्ड ग्रोसिंग अप। नाउ व्हाट इज ग्रोसिंग अप? देखो, जब भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब भी आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कुछ पैसा मिलता है, तो इनकम टैक्स एक्ट देयर इज अ प्रोविजन that interest on securities are subject to tax rate, मतलब subject to TDS rate, tax नहीं but TDS rate of 10%, मतलब इस पे 10% TDS काट के ही देता है। सपोज समझ लो कि मेरे पास कोई कंपनी के 1 लाख डिबेंचर है, और 1 लाख डिबेंचर है और एक डिबेंचर की कीमत 10 रुपया है फेस वैल्यू। ओके, तो सपोज
the investment which I have made in the debenture is 10 lakh rupees. So this is the face value of the debenture. Suppose the rate of interest is 10%. How much I will going to receive? I will receive rupees 1 lakh. तो 1 lakh मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. बट जो कंपनी वो मुझे 1 लाख इंटरेस्ट नहीं देगी, उसमें से वो 10% TDS काट लेगी. 10% TDS काट लेगी, मतलब 1 लाख का 10% वो काट लेगी 10,000 rupees, and I will going to receive only 90,000 rupees. Now here there is a question that I am earning the 1 lakh rupees. Okay, this is my earning. ठीक है, this is my TDS. ये TDS कट गया, और this is actual received by me. Now this question arises that which amount is taxable? 1 lakh is taxable or 90,000 is taxable? So you must know that जब भी आप आपकी इनकम कंप्यूट करते हो तो टीडीएस अगर कट गया है, सैलरी में हम क्या करते हैं कि सपोज मेरी सैलरी 1 लाख है, 10,000 टीडीएस कट जाता है, फिर भी जब मैं अपनी इनकम कंप्यूट करता हूँ तो आई विल कंसीडर 1 लाख नॉट 90,000. ठीक है, 10 लाख में से अगर 1 लाख टीडीएस कट गया तो माई इनकम इज 9 लाख, नॉट अ 9 लाख, इट इज 10 लाख ओनली. ओके, तो यहाँ पे भी यही होगा कि माई इनकम इज नॉट 90,000, माई इनकम विल बी ट्रीटेड एज 1 लाख. तो ये आपको हमेशा इनकम टैक्स के लिए जब भी इनकम लेते हो आपको कौन सी इनकम लेनी है? ग्रॉस इनकम. ग्रॉस इनकम ही कंसीडर करनी है. પછી તો તમે જે एक्चुअल टैक्स ગણશો એ તમારા ટીડીએસ સામે એડજસ્ટ થઈ જશે. ધેટ યુ નો कि आपका टीडीएस पूरे साल में कटा है 20,000 रुपया, फिर एक्चुअल इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया तो आपको पता चला कि भाई मेरे को तो 15,000 ही टैक्स भरना है, तो वो क्या होगा? योर टीडीएस विल गेट एडजस्टेड, और ऊपर से अगर 5,000 ज्यादा भरा है तो दैट यू विल गेट द रिफंड. सपोज 20,000 टीडीएस आपने प्रीवियस ईयर में भरा, सबके अलग अलग पेमेंट में से 20,000 कट गया, और यू हैव कैलकुलेटेड ऑन योर एक्चुअल इनकम, ग्रॉस इनकम पे आपने टैक्स कैलकुलेट किया, आपको पता चला माय टैक्स लायबिलिटी इज ओनली 15,000 and you have already paid by way of TDS 20,000, so 5,000 will be refunded to you. Or suppose someone you have calculated the tax and you come to know that my tax liability is 25,000, तो 20,000 तो आपने ऐसे TDS ऑलरेडी पे कर दिया, तो आपको गवर्नमेंट को अभी कितना देना है? ओनली 5,000. मतलब TDS मैकेनिज्म ऐसे काम करता है कि आपके अलग अलग पेमेंट में से TDS कट जाता है, और वो जो लोग भी काटते हैं वो काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करते हैं और आपके अकाउंट में ही जाते हैं वो. और फिर जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो यू हैव टू कैलकुलेट योर टैक्स ऑन योर ग्रॉस इनकम एंड नॉट ऑन द नेट इनकम. तो जब भी आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कोई इनकम मिलेगा, अगर इंटरेस्ट से कोई इनकम मिलेगा, तो कभी कभी क्या होगा, आपको नेट अमाउंट दिया होगा. तो अगर नेट अमाउंट दिया है तो वी रिक्वायर टू ग्रॉस अप, बिकॉज वी डोंट वांट द नेट अमाउंट, वी वांट द ग्रॉस अमाउंट. ओके, तो कैसे ग्रॉस अप करोगे? देखो, एज in the case of some other income there is also provision of tax deducted at source. TDS का provision होता है. Income from winning from lotteries, horse race, crossword puzzles, देखो ये सब में TDS rate in case of this income is 30%. मतलब if the income exceeds 10,000, अगर आपको winning from lottery, crossword puzzles से और ये सबसे 10,000 से ज़्यादा इनकम मिलती है तो उस पर 30% TDS काट के ही देगा. तो 10,000 से ज़्यादा सपोज मैंने 20,000 कमाया तो उसमें से 30% वो काट लेगा और उसके बाद ही मुझे अमाउंट देगा. And such deduction at source at income is received is a net income after the deduction. देखो आप इसकी वजह से आपको नेट इनकम ही मिलेगा. In case of such income, net income will have to be gross up. देखो आपको नेट इनकम पे टैक्स नहीं भरना है, आपको ग्रॉस इनकम पे टैक्स पे करना है. So see, if the net income is given to you, then you are supposed to gross up. If the person, देखो एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि if the person wins the lottery of ₹1 lakh, तो उसमें से टीडीएस कितना काट लिया होगा? 30% के हिसाब से दे हैव डिडक्टेड 30,000. तो उसको एक्चुअली हाथ में कितना आया? he has received only 70,000 in his hand. बट 70,000 पर टैक्स नहीं लगेगा. इसमें विन कितना किया? 1 लाख. तो यू नीड टू ग्रॉस अप. तो कैसे ग्रॉस अप करोगे? 70,000 બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. જો તમને સપોઝ ટીડીએસ નો રેટ ખબર હોય તો આ સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા છે. હાઉ યુ વિલ ગ્રોસ અપ? યુ કેન યુઝ ધીસ ફોર્મ્યુલા कि ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट जो आपको मिला है वो डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस. यही फॉर्मूला आपको यूज करनी है तो आपको ग्रॉस अमाउंट मिल जाएगा. ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट? नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस. देखो सपोज यहाँ पे आपको नेट अमाउंट मिला है 70,000 रुपीज. ओके, व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस? 30%. देखो 30% मतलब
30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब इट इज 0.30। तो 1 माइनस 0.30 आप करोगे तो इट इज हाउ मच, 70,000 divided by 0.70. So you will get the gross amount of rupees 1 lakh. So you can find out the gross amount in this way. तो ग्रॉस अमाउंट ये तरीके से फाइंड कर सकते हो कि ग्रॉस अमाउंट इज इक्वल टू नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, और टीडीएस का रेट 30% है, 30 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 0.30 लेना है। तो आपको कभी भी नेट अमाउंट दिया है तो यू हैव टू ग्रॉस अप, आपको देखना है सम में क्या अमाउंट दिया है, ग्रॉस दिया है, नेट दिया है। ग्रॉस दिया है तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नेट दिया है तो आपको ग्रॉस करना ही पड़ेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अमाउंट। ओके, तो देखो यहाँ पे 70,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके उसने 100 माइनस 30 किया है, तो मतलब वो उसने फॉर्मूला रखा है, लेकिन दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ये नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय। अब सीधे आप क्या कर सकते हो, उसको ऐसे ग्रॉस कर सकते हो। देखो सेम वे इन इंटरेस्ट ऑल्सो वी आर सपोज टू टेक केयर कि आपको ग्रॉस करना है। जिसने 70 को ग्रॉस करके 1 लाख फाइंड किया, तो यू हैव टू पे द टैक्स ऑन 1 लाख एंड नॉट 70,000। ओके, नाउ इंटरेस्ट इनकम, देखो इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो इज सब्जेक्ट टू टीडीएस, तो वो भी आपको नेट ही मिलता है। तो टैक्स इज ऑल्सो डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज at the prescribed under the tax. For income tax purpose, what is to be charged at the tax is a gross amount of interest. So if the net interest is given, it has to be gross up to arrive the taxable amount. In case of government securities, देखो other than government securities, other than government of saving, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वो भी टैक्सेबल होती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी का इंटरेस्ट एग्जाम होता है। हाँ, गवर्नमेंट की कुछ सेविंग बेस्ड सिक्योरिटी होती है वो एग्जाम होती है, वो आगे हम देखेंगे। तो बॉन्ड ग्रोसिंग अप इज नॉट रिक्वायर्ड एज देयर इज नो डिडक्शन ऑफ टैक्स। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड होते हैं उस पर जनरली टीडीएस नहीं काटते, तो उस पर आपको ग्रोसअप करने की जरूरत नहीं होगी। वो आपको सब में दिया होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस, तो जो इंटरेस्ट मिला वो पूरा टैक्सेबल होगा क्योंकि उसमें से टीडीएस नहीं काटा होगा। लेकिन काफी सारी सिक्योरिटीज कैसी होती है, उस पर टीडीएस कटता है, तो टीडीएस काट के अमाउंट दिया तो आपको उसको ग्रॉस अप करना है। ठीक है, देखो फॉलोइंग सिक्योरिटीज हाउएवर ग्रॉसिंग अप इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज। देखो गवर्नमेंट की ये कुछ सिक्योरिटीज है जिसमें ग्रॉसिंग अप की जरूरत पड़ती है। देखो ये गवर्नमेंट की 8.58% गवर्नमेंट सेविंग टैक्सेबल इनकम बॉन्ड 2003 की सीरीज के बॉन्ड है, उसके अंदर टीडीएस आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा क्योंकि टीडीएस काटती है गवर्नमेंट। 7.75% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 सीरीज के हैं, अगर इस पे भी अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो उसने टीडीएस काट के दिया, आपको ग्रॉस अप करना पड़ेगा। देखो टैक्स फ्री के नाम से भी, टैक्स फ्री डज नॉट मीन कि उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, वो टीडीएस काट के देते टैक्स फ्री वाला। तो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या तो फिर लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सभी में भी आपको ग्रॉस अप करने की जरूरत पड़ेगी। भले नाम से आप कंफ्यूज हो गए, गवर्नमेंट से, टैक्स फ्री से, लेस टैक्स से, नो उस पर वो टीडीएस काट के ही देगा आपको। भले ये सिक्योरिटीज के नाम ऐसे कंफ्यूजिंग है कि भाई इस पर टीडीएस नहीं कटता होगा, लेकिन दिस सिक्योरिटीज आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिर भी इस पे टीडीएस काटा जाता है, हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू बी ग्रॉस अप। देखो ग्रॉस अप कैसे करते हैं, नेट इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस। 100 माइनस करोगे तो भी वही, और लेकिन 100 माइनस करोगे, ठीक है, यहाँ अगर आप 100 लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इफ यू टेक 100 ईयर, ओके, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने जो फॉर्मूला आपको बताई 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस, मैंने 100 से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन आप कोई भी कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है कि नेट अमाउंट जो होता है उसको 1 माइनस रेट ऑफ टीडीएस करो, या तो भी 1 नेट अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस करके मल्टीप्लाई बाय 100 करो, यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, सो एनी ऑफ द मेथड यू कैन फॉलो। ओके, देखो रेट ऑफ टीडीएस अलग अलग सिक्योरिटीज में कौन से रेट से इंटरेस्ट का मतलब टीडीएस काटा जाता है वो बोला है। देखो रेट ऑफ टीडीएस में इंटरेस्ट के केस में क्या ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ गवर्नमेंट सेविंग बॉन्ड इफ द इंटरेस्ट एक्सीड्स 10,000, 10,000 से ज्यादा अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वहां से आपको टीडीएस काट के मिलेगा, तो वो आपको ग्रॉसिंग अप करना पड़ेगा। आपको सब में बोला होगा कि नेट अमाउंट, तो नेट है तो आपको ग्रॉस कर देना है। ओके, और देखो दोनों का रेट भी आपको मैंने बता दिया, इसका 10% है और विनिंग फ्रॉम लॉटरी का 30% है। तो एग्जाम में रेट नहीं दिया है लेकिन आपको बोला है नेट अमाउंट, तो यू हैव टू ग्रॉस अप। विनिंग फ्रॉम लॉटरी को 30% वाले फॉर्मूला से ग्रॉस अप करो,
और इसको 10% से क्रॉस अप करो। देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विदर लिस्टेड और नॉट लिस्टेड, देखो गवर्नमेंट की जो दूसरी सिक्योरिटी है, देखो गवर्नमेंट बॉन्ड जो होते हैं वो उस पर टीडीएस लगता है 10% से, बट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज जो अदर होती है, ओके, जो टैक्सेबल ही नहीं होती है, उस पर टीडीएस गवर्नमेंट नहीं काटती। और देखो इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होती है, अगर वो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, अनलिस्टेड है, इट डजंट मेक डिफरेंस, बट अगर उसका अमाउंट 5,000 से ज्यादा होता है तो वो लोग टीडीएस काटते हैं। तो टीडीएस कब काटा जाता है उसके प्रोविजन है कि देखो गवर्नमेंट के जो सेविंग बॉन्ड है उसमें 10,000 से ज्यादा इंटरेस्ट होता है, वो टीडीएस 10% काट के अमाउंट देगा। गवर्नमेंट की दूसरी कोई सिक्योरिटीज है वो टैक्सेबल नहीं होगी, सेविंग बॉन्ड गवर्नमेंट के टैक्सेबल है। और देखो इंटरेस्ट ऑन नॉन गवर्नमेंट मतलब जो कंपनी की प्राइवेट सिक्योरिटीज होती है, लिस्टेड अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, उसमें कब टीडीएस काटा जाता है, व्हेन द अमाउंट एक्सीड्स 5,000, यहाँ 10,000 क्रॉस होने पे, यहाँ 5,000 क्रॉस होने पे टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, नाउ सी, देखो आपको जब भी इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, तो इंटरेस्ट को कमाने के लिए अगर आपने कोई खर्चा किया है तो विल इट बी अलाउड एज ए डिडक्शन। सो यस, अगर मैंने ब्याज कमाने के लिए अगर कोई खर्चा किया है तो इंटरेस्ट में से मुझे इतना डिडक्शन मिलेगा। यू कैन सी द फॉलोइंग डिडक्शन विल आल्सो बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो તમે ખર્ચો કર્યો હોય, લાઈક સપોઝ ઇફ યુ ઇન્કર ધ કલેક્શન ચાર્જ, સપોઝ बैंक में डायरेक्टली इंटरेस्ट जमा हुआ और बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, तो डेट इज कॉल्ड द कलेक्शन चार्जेस। सपोज मुझे 1,00,000 रुपया इंटरेस्ट गवर्नमेंट सॉरी कोई सिक्योरिटीज जो टैक्सेबल है उस पर मिला, और 1,00,000 में से 5,000 रुपया बैंक ने अपना बैंक चार्जेस काट लिया, तो 5,000 बैंक चार्जेस विच आई हैव पेड विल बी अलाउड मी एज ए डिडक्शन। समझ में आ रहा है बेटा? हेलो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ सपोज देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, कभी कभी कुछ लोग ऐसे करते हैं कि भाई, तो खबर पड़ी ना, लाइक सपोज ये हम फार्मर्स जनरली करते हैं कि फार्मर्स को बहुत कम लोन इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलती है। तो सपोज लोन मिलती है फार्मर को, सपोज फार्मर को मिला कि भाई तेरे को 6% की लोन मिली, फार्मर क्या करेगा, 6% की लोन ले लेगा। फार्मर ने काफी सारे लोग ऐसे करते कि सस्ता ब्याजे लोन મળે ને તો લઈ લે, પછી આ પૈસા કોઈ ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝમાં નાખી દે। ગવર્મેન્ટ સિક્યુરિટીઝ પર ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું મળે છે તો કે 8%, તો અહીંયા 2% ડિફરન્સ છે ને એની બેઠી ઇન્કમ થઈ જાય। सपोज आपने 10 लाख रुपए की लोन ली, तो 10 लाख पे आपको सपोज 6% है, तो 6% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, बट आप अर्न कितना कर रहे हो 8% के हिसाब से, तो दिस 2% इज टैक्सेबल। तो टैक्सेबल कितना होगा 8%, और ये 6% आप जो ब्याज पे कर दो, सपोज 1,00,000 છે તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, તો 1,00,000 તમે રોક્યા છે તો એના 6% તમારે વ્યાજ ચૂકવવાનું, તો તમારે વ્યાજ કેટલું ચૂકવવાનું 6,000, તમે વ્યાજ કમાવો છો કેટલા તો કે 8,000, તો 8,000 તમારી ઇન્કમ, 6,000 इज योर एक्सपेंस, सो नेट इनकम 2,000 विल बी टैक्सेबल। ओके, तो अगर आपने कोई लोन लिया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए, तो जो भी लोन लिया उसका इंटरेस्ट पे करते हो, दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। सो इंटरेस्ट ऑन दी मनी बोरोड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटीज कैन बी क्लेम एज ए डिडक्शन, तो इसका भी आपको डिडक्शन मिलेगा। But if you have incurred any other expense, suppose if you have incurred any other expense not being expenditure of capital nature, okay, an expense is only and exclusively for making and earning such income can be allowed as a deduction। suppose मैंने कोई कंसल्टेंट रखा है, वो मुझे हर साल सलाह देता है कि आ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, आ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, और वो कंसल्टेंट मेरे से साल की 10,000 फीस लेता है, तो दैट इज अ इनकम and will sorry that is the expense and will be allowed as a deduction। suppose મને 20,000 રૂપિયા ઇન્ટરેસ્ટ મળ્યું, પછી 5,000 રૂપિયો ખર્ચો બી મારા કન્સલ્ટન્ટને ચૂક્યો, 5,000 is the expense that is allowed as a deduction to me। okay, देखो ये अलग पॉइंट है, डिडक्शन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन। ओके, ये पॉइंट अलग है कि इसको मैं डिस्कस करता हूँ। ये कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन, सबसे पहले गवर्नमेंट इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज नहीं है, पहले ये समझ लो। इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन, इट इज नॉट अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। देखो ये पॉइंट आगे भी 2 बार ये चैप्टर में आ गया है, देखो एक यहाँ पे आया, ठीक है, एक यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट एनहेंस कॉम्पेंसेशन, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ यही चैप्टर के स्टार्टिंग में यहाँ पे आया कि इंटरेस्ट ऑन
यहाँ पे एनी कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड इन कनेक्शन विद सॉरी नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आया इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन। तो उस टाइम पे भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, अभी आप डिटेल में पढ़ते हैं इसको कि एक कॉम्पेंसेशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे डिटेल नहीं किया है, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस। एंड कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि व्हेन देयर इज अ कंपल्सरी टेक आउट, कंपल्सरी गवर्नमेंट आपकी कोई प्रॉपर्टी है जो कंपल्सरीली आपसे ले लेती है। सपोज समझ लो कि मेरा एक प्लॉट ऑफ लैंड है और उसके ऊपर से ही रेलवे का ट्रैक जाने वाला है। नाउ आई डोंट वांट टू सेल कि भाई मारे आ प्लॉट નથી વેચવું, તે છતાં પણ ગવર્મેન્ટ તમારી પાસે લઈ લે છે, તો આને કહેવાય कंपल्सरी एक्विजिशन। ओके, इट इज नोन एज कंपल्सरी एक्विजिशन। अभी गवर्नमेंट के केस में आपको मैंने बताया वो आपको टाइम पे पैसा नहीं देती, वो हमेशा उसमें, क्योंकि आपके जैसे काफी दूसरे फार्मर्स भी हो गए, दूसरे लोग सबसे उसको खरीद रहा है और सबका से खरीद लिया, उसके बाद वो पैसे रिलीज करते हैं। सपोज आपने प्रॉपर्टी आज बेची, आपको पैसे 1 साल के बाद मिलेंगे, तो जो भी पैसा आपने डिसाइड किया है कि भाई ये प्लॉट आप ले लो, ठीक है, आप मुझे 10 लाख दे देना, लेकिन वो 10 लाख 1 साल के बाद अगर वो देते हैं तो उसमें टर्म लिखा होता है आपको इतना इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो सपोज 10 लाख मुझे मिलता है 1 साल के बाद, और सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10,000, तो 10%, तो आई विल ऑल्सो रिसीव वन अनदर 10,000। 1 लाख में અમે લેન્ડ વેચી, સોરી 10 લાખ में અમે લેન્ડ વેચી, એમાં એવું લખ્યું હતું ભાઈ 1 વર્ષનું તમને 10% વ્યાજ મળશે। Now government is paying me after 1 year that payment, so I will receive the 10% interest on 10 lakh, so I will receive 1 lakh rupees। So 1 lakh is 10 lakh is a compensation, but 10,000 which I am receiving, that is my income or that is the interest income। तो वो इंटरेस्ट पीजीबी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन। एनहेंस कॉम्पेंसेशन का मतलब देखो कभी कभी क्या होता है कि आपका कोर्ट में केस चला जाता है कि भाई आ जमीन ने तो 15 लाख आवे होता, गवर्नमेंटे મને 10 लाख જ આપ્યા, તમે કેસ કરો ને ગવર્મેન્ટ બીજા 5 લાખ આપે છે, ને 5 લાખ તમને 10 વર્ષ કેસ ચાલ્યો, તો 10 વર્ષ પછી 5 લાખ મળશે ને, તો 5 લાખ વ્યાજ સાથે મળશે, કે બીજું 2 લાખ રૂપિયા વ્યાજ માંગે। तो तमने भी 2 लाख रुपीस इंटरेस्ट यू हैव रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन एनहेंस कॉम्पेंसेशन। और अगर आपका कॉम्पेंसेशन भी आपको लेट मिलता है, ऑन दैट इफ यू रिसीव, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन। सपोज इफ यू रिसीव एनी कॉम्पेंसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द गवर्नमेंट, और इफ यू रिसीव एनी एनहेंस कॉम्पेंसेशन ऑन दैट, अगर लेट पेमेंट करती है गवर्नमेंट और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, देखो ये इंटरेस्ट में आपको ध्यान रखना है कि वो जितना भी इंटरेस्ट मिलता है ना, वो पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, उसका हाफ 50% डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन 57 यहाँ बोलता है कि इन केस ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स, देखो अगर आपको ये इंटरेस्ट मिलता है कॉम्पेंसेशन और एनहेंस कॉम्पेंसेशन इफ यू आर रिसीविंग, इन केस ऑफ अबाउ द इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन मिलता है वो आपका कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो सकता है, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला, दैट इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एंड अ डिडक्शन ऑफ सम अप टू ₹50, up to 50% of such income shall be allowed to the assessee, and no deduction shall be allowed under any other clauses of section 57। मतलब समझ लो कि भाई मैंने मेरी एक प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने मेरे से ले ली और उसका मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना था 10 लाख रुपीज, तो 10 लाख मुझे गवर्नमेंट देती है, लेकिन उसने मुझे 1 साल के बाद दिया तो मुझे 10% इंटरेस्ट भी देती है। तो आई विल नॉट रिसीव ओनली दिस 10 lakh, बट आई विल ऑल्सो रिसीव दी 10,000। तो दिस इज माई कॉम्पेंसेशन, ये मेरा क्या है, कॉम्पेंसेशन है, बट दिस इज वॉट, दिस इज द इंटरेस्ट। दिस कॉम्पेंसेशन मे बी टैक्सेबल अंडर देयर कैपिटल गेन, बट दिस इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 10,000 टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो प्रोविजन सेक्शन 57 क्या कहता है कि अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो इसके लिए आपने जो भी खर्चा किया है या नहीं किया है वो कुछ देखना नहीं है, इसका 50%, मतलब ये 10,000 का 50% कितना होगा, 5,000, दैट इज डिडक्शन
एंड हाउ मच विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, ओनली 5000 विल बी टैक्सेबल। मतलब 50% डिडक्शन मिल जाएगा अगर आपको कोई कॉम्पेंसेशन मिला है तो। और देखो ओनली द डिडक्शन दैट विल बी अलाउड अगेंस्ट द डिविडेंड इनकम will be interest, and that is to will be restricted to 20% of the dividend income. Okay, देखो यहाँ पे भी होता है कि dividend, the only deduction that will be allowed against the dividend income will be the interest, and that will be to the restricted of 20%. ये पॉइंट क्या कहता है, देखो कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि लोन लेने, देखो ये थंब रूल है, आप किसी भी इन्वेस्टर को मिलोगे तो बताएगा क्यारे लोन લઈને શેર બજારમાં પૈસા નહીં નાખવાના, પણ કોઈ બહુ વધારે સ્માર્ટ હોય ને બહારથી લોન લીધી ને લોન લઈને શેર બજારમાં પૈસા નાખ્યા, તો સપોઝ उसने लोन ली 5 लाख रुपए की, और ये 5 लाख रुपया उसने इन्वेस्ट किया कोई कंपनी के शेयर्स में, और ये 5 लाख रुपए के शेयर्स उसके पास है। अभी समझ लो उसने 5 लाख रोके थे, आज उसकी प्राइस बढ़ के 7 लाख हो गई, उसने अभी तक शेयर बेचे नहीं, વાતો તે કમાશે જ, 5 લાખના 7 લાખ થઈ ગયા તો 2 લાખ રૂપિયા તો એને પ્રાઇસમાં વધારો થયો 2 વર્ષમાં, પણ આ 2 વર્ષમાં એને જે કંઈ પણ પૈસા રોક્યા છે ને એના પર એને ડિવિડન્ડ પણ મળ્યું। शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो दो बेनिफिट होता है, प्राइस बढ़ती है उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है और डिविडेंड भी मिलता है। तो सपोज आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर आपको सपोज 20,000 रुपया डिविडेंड मिला। ओके, तो आपको मैक्सिमम, और सपोज आपने लोन ली है तो लोन का अगर आपने लोन ली और लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया शेयर्स में, तो लोन का जो भी इंटरेस्ट पे करोगे आपके लिए क्या है, खर्चा है। तो देखो कितना, अगर सपोज आपने ये 5 लाख है उसका अप टू 20%, मतलब 1 लाख तक का इंटरेस्ट है, दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। सपोज समझ लो ये 7 लाख का इन्वेस्टमेंट है और उस पर आपको 2 लाख रुपया डिविडेंड मिला, तो ये 2 लाख डिविडेंड में से इंटरेस्ट का खर्चा लेस होगा, लेकिन अप टू 20%, 20% इज हाउ मच 1 लाख। तो देखो अगर आपने इंटरेस्ट पे भी किया है तो वो भी कितना मिलेगा, ओनली 1 लाख तक का डिडक्शन आपको मिल सकता है। मतलब अगर आपने कोई कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर इन्वेस्टमेंट किया है, ओके सॉरी लोन लिया, तो लोन का इंटरेस्ट डिडक्टेबल है, लेकिन अप टू व्हाट, अप टू 20%, नॉट मोर देन 10। देखो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, हमारा चल रहा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये हम ये 6 नंबर का पॉइंट पढ़ रहे थे, उसके अंदर ये सब पॉइंट आए। अगेन ये 6 नंबर के पॉइंट से रिलेटेड है कि देखो ये सब जगह के ये सब सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा कि आपको ये सिक्योरिटी से इंटरेस्ट मिला, तो यू मस्ट नो दैट इसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है। तो देखो अगर आप रेलवे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा। अगर 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है इट इज एग्जम्प्ट। ओके, देखो गवर्नमेंट के जो 9% ऑफ रिलीफ बॉन्ड ऑफ 1987 है गवर्नमेंट ने इश्यू किए थे, और इस पर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है दैट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट। देखो इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स और डिबेंचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, अगर गवर्नमेंट की कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है, GSFC है, ONGC है, वो बॉन्ड इश्यू करती है, और अगर वो नोटिफाइड है तो उसका इंटरेस्ट भी एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन द सिक्योरिटी हेल्ड बाय द वेलफेयर कमिश्नर और इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट फॉर द बेनिफिट ऑफ द विक्टिम ऑफ द भोपाल गैस डिजास्टर। जब भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था तो इंडिया हैज सफर्ड अ लॉस, और गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी वो भोपाल को वापस खड़ा करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बॉन्ड इश्यू किए थे, और वो बॉन्ड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया और आज भी आपको उसका इंटरेस्ट मिलता है तो दैट इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट। ओके, देखो नोटिफाइड बॉन्ड इश्यूड बाय द लोकल अथॉरिटी और स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, अगर कोई लोकल अथॉरिटी लाइक हमारे वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अभी लास्ट ईयर बॉन्ड इश्यू किए थे, ओके, तो ऐसे कोई बॉन्ड अगर इश्यू करती है कोई लोकल अथॉरिटी या तो फिर स्टेट पूल्ड फाइनेंस एंटिटी, जो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस एंटिटी है, लाइक गुजरात स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो ऐसा कोई फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड इश्यू किया और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। ओके, सेम वे इंटरेस्ट ऑन द गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ये सिक्योरिटी का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन गोल्ड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। देखो अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में PPF में पैसा रखा है उसका इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। और इंटरेस्ट ऑन सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये आप सबको पता होगा, ये बहुत पॉपुलर किया है मोदी जी ने।
तो ये इंटरेस्ट अगर आपको यहाँ से अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसा पड़ा है और वहां से इंटरेस्ट मिलता है, दैट इज ऑल्सो एग्जाम। और देखो अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस का कोई सेविंग बैंक अकाउंट है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, ये ध्यान रखने जैसा पॉइंट है, ये एग्जाम में आता है जनरली। अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है और उस पर इंटरेस्ट मिलता है, तो आपको देखना है कि इंटरेस्ट वो अकाउंट कैसा है। अगर अकाउंट सिंगल अकाउंट है, मतलब मैंने अपने अकेले नाम पे अकाउंट खुला है, तो वो केस में सपोज मुझे 5,000 इंटरेस्ट मिला, तो उसमें से सपोज समझ लो 10,000 इंटरेस्ट मिला, तो 10,000 में से 3,500 तक एग्जम्प्ट होगा। व्हेन द अकाउंट इज सिंगल, कितना एग्जम्पशन मिलता है, कितना डिडक्शन मिलता है, 3,500। और सपोज आपका अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब आई एम हैविंग अ ज्वाइंट अकाउंट विथ माय वाइफ, और वहां पे 10,000 अगर मुझे मिला, तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो यहाँ पे मुझे 7,000 तक एग्जम्प्ट होगा। तो अब जब भी आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, यू शुड बी केयरफुल कि यू गो फॉर द ज्वाइंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 तक डिडक्शन मिलता है। एग्जाम ओके, इट इज एग्जाम, डिडक्शन नहीं, वो एग्जाम है, उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट बियॉन्ड 3,500 एंड 7,000 इन केस ऑफ जॉइंट सेविंग अकाउंट शैल बी टैक्सेबल। मतलब 3500 સુધી इंटरेस्ट મળે તો એક્ઝામ સિંગલ માં, 3500 થી વધારે મળ્યું તો જેટલું મળ્યું છે એમાંથી 3500 તો પહેલા લેસ કરવી જ દેવાના, બાકીના ટેક્सेबल થશે। और जॉइंट अकाउंट है तो सेविंग 7,000 तक का एग्जाम्पशन मिलेगा। देखो तो ये पॉइंट देखो, रेलवे के बॉन्ड है 7% कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, 9% रिलीफ बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन नोटिफाइड बॉन्ड्स और डिबेंचर ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी, भोपाल गैस डिजास्टर, ये स्टेट फूड एजेंसी और लोकल अथॉरिटी के बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के बॉन्ड, गोल्ड मोनिटाइज स्कीम के बॉन्ड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि और दिस पोस्ट इंटरेस्ट ऑन द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट। अगर ये सब जगह पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, और यहाँ से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिलता है तो इट इज फुल्ली एग्जाम। देखो हाँ, ये अगर आपके ध्यान के लिए दूसरा पॉइंट है कि इंटरेस्ट इन एनएससी, एनएससी मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ओके, वो हमेशा टैक्सेबल होता है, बट इट इज एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ इनिशियल 5 ईयर इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। मतलब यहाँ एग्जाम्पशन नहीं है, यहाँ आपके पॉइंट, आपके ध्यान के लिए दिया है ये पॉइंट कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिलता है, अगर एनएससी में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया है और इसका इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल होता है। तो यस इट इज टैक्सेबल, लेकिन पहले 5 साल का जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, क्योंकि एनएससी में क्या होता है, जो इंटरेस्ट मिलता है वही वापिस एनएससी में ही इन्वेस्ट हो जाता है। तो पहले 5 साल का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसमें आपको 80C में डिडक्शन मिलता है। ओके, सेम वे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन, देखो ये 80 TTA में डिडक्शन मिलता है कि अगर आपके पास कोई पूरे मतलब आपके पास सिक्योरिटीज है सेविंग बैंक अकाउंट, देखो ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड नहीं है, अदर सोर्सेज का पॉइंट भी नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर कि अगर 80 TTA का सेक्शन हम बाद में पढ़ेंगे जब आएगा, बट यू मस्ट नो कि भाई अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं और आपने बैंक में रखे, तो अंडर सेक्शन 80 TTA कब आता है, फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, अदर सोर्सेज में नहीं आता। 5 हेड पूरा पढ़ लेने के बाद हम ग्रॉस टोटल इनकम का जब सम करेंगे तब आएगा 80 TTA। ग्रॉस टोटल इनकम में से 80C टू 80O में 80 TTA के हिसाब से अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट कमाया है, तो जो भी टैक्सेबल इंटरेस्ट है उसमें से 10,000 तक का आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके, और देखो ये 80 TTA interest on saving bank account up to 10,000 is, और any bank interest under section 80 TTB, ये TTB है ना, ये सीनियर सिटीजन के लिए। तो 80 TTB इज फॉर सीनियर सिटीजन, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो और आपने इंटरेस्ट कमाया है अलग अलग सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रख के, तो 50,000 तक का कोई भी इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80 TTB। 80 TTA में सेविंग बैंक अकाउंट की बात ये है 10,000 तक का इंटरेस्ट, ये सभी इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होते हैं। ओके, और अगर आपको इंटरेस्ट मिला है, अगर नेट अमाउंट मिला है तो आपको ग्रॉस करना है। इंटरेस्ट कमाने के लिए अगर ये सब खर्चे किए तो इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। तो दिस ऑल वर द पॉइंट रिलेटेड टू द इंटरेस्ट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट। तो ये पॉइंट हम कल डिस्कस करेंगे। राइट नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई लेक्चर। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस पॉइंट। ओके, समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, Yes, sir. so much. Yes, sir.
So I'm concluding my lecture. Once the recording will stop, I will leave the meeting. But see, if you want to stop, means if you want to leave, you can leave. लेकिन I have to remain present here. Okay, तो आपको जाना है.